गुजरात के महिसागर जिले में फिर एक बार भाड़े पर शिक्षिका रखने का मामला सामने आया है। महिसागर के एक स्कूल में शिक्षिका की माता बच्चे को पढ़ा रही थी, जिसका वीडियो वायरल हो गया। इस घटना के सामने आते ही शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं। ये मामला संतरामपुर तालुका के जानवड़ गांव स्थित श्री नवयुवक ग्राम विकास मंडल द्वारा संचालित आश्रम शाला का है। यहाँ की शिक्षिका रीटाबेन की जगह उनकी रिटायर्ड मां चंद्रिका पटेल पिछले 2 वर्षों से बच्चों को पढ़ा रही थी। वायरल वीडियो में चंद्रिका पटेल को क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते हुए देखा गया। जब चंद्रिका पटेल से इस बारे में सवाल किया गया तो वो आश्रम छोड़कर चली गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि रीटाबेन के पति आश्रम ट्रस्ट के सदस्य हैं, जिसके चलते वो अपने मनमुताबिक नियमों को तोड़ रही हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 साल बाद आखिरकार रेपो रेट घटाया है, जिसका सीधा फायदा करोड़ों लोगों को होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया है। अब आपके सभी लोन सस्ते हो सकते हैं और ईएमआई भी घटेगी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सुबह 10 बजे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में लिए फैसले की जानकारी दी। आरबीआई ने मई 2020 में आखिरी बार रेपो रेट में 0.40% की कटौती की थी और इसे 4% कर दिया था। हालांकि मई 2022 में रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू किया, जो कि मई 2023 में जाकर रुका। इस दौरान रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 2.50% की बढ़ोतरी की और इसे 6.5% तक पहुंचा दिया। इस तरह से 5 साल बाद रेपो रेट घटाया गया है। The Monetary Policy Committee met on 5th, 6th yesterday, 7th today of this month. You are all aware that the governor's statement after the MPC meeting contains the resolution of the MPC with regard to the policy rate and stance. It also contains announcements and measures which have a bearing on the monetary and regulatory policies. The Monetary Policy Committee resolution is of course of interest to a large number of people from various walks of life. It impacts the lives of virtually all citizens of the country. The resolution also provides the rationale and the thought process of the MPC and therefore is of relevance to businesses, economists, academicians, and the finance world. We in the Reserve Bank and the Monetary Policy Committee will continue to improve the macroeconomic outcomes in the best interest of the economy, using the flexibility which is embedded in the framework, while responding to the evolving growth inflation dynamics. With this backdrop, let me now come to the Monetary Policy Committee resolution. As I mentioned, we met these last 3 days, concluding today. And after a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the economic outlook, as I mentioned, we are forward-looking, the MPC decided unanimously to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. Consequently, the standing deposit facility, SDF, the SDF rate shall be at 6.0%, and the marginal standing facility rate, also called the MCF rate, and the bank rate shall be 6.5%. The MPC also decided unanimously again to continue with the neutral stance and remain unambiguously focused on a durable alignment of inflation with the target while supporting growth. I shall now state the rationale for the decision in brief. The MPC noted that inflation has declined, supported by favorable outlook on food and continuing transmission of past monetary policy action. It is expected to further moderate in 2025-26, gradually aligning with the target. The MPC also noted that though growth is expected to recover from the low of Q2 of 2024-25 this year,
it is much below that of last year. Last year, you are all aware, it was 8.2%. This growth inflation dynamics opens up policy space for the MPC to support growth while remaining focused on aligning inflation with the target. गुजरात के सूरत के वराछा इलाके में एक होटल मालिक द्वारा आत्महत्या का मामला सामने आया है। सूरत में होटल मालिक ने कामरेज ब्रिज से कूदकर सुसाइड कर लिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतक होटल मालिक की पहचान योगेश भाई के रूप में हुई है। वायरल वीडियो में उन्होंने हनी ट्रैप का शिकार होने का आरोप लगाया है। उनका कहना था कि होटल में काम करने वाली एक युवती ने उन्हें फंसा दिया। घटनास्थल से योगेश भाई की चप्पल और पर्स बरामद किए गए हैं। पुलिस ने ताप्ती नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें योगेश भाई की लाश बरामद हुई। इस घटना के बाद सूरत ग्रामीण और सूरत शहर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। मारू नाम योगेश से मने नैना अनु झाला नैना भरत झाला मने हनी ट्रेप में फसाव्या। मारी होटले नैना भरत झाला काम करती थी। एनी जेठाणी नैना अनु झाला मेन मास्टर माइंड मने हनी ट्रेप में फसावेला अने मने नैना भरत झाला भगाड़ीने लई गई अने 4-5 दिवस पछी पाछा आवता रह्या। मने के चलो हवे जावुं छे एम करीने पछी आव्या એટલે નૈના અનુ ઝાલા મારી પાસે 5 લાખ રૂપિયા માગણી કરી અને નહીં આપ તો તને મારી નાખીશ કે તારી દુકાનમાં તોડફોડ કરીશ એવી મને ધમકીઓ બધી આપી અને મને મજબૂર કરી મૂક્યો કે પૈસા આપ ગમે એમ કરીને મને મારી પાસે પૈસા બી પડાવી લીધા અને હજી પૈસા આવી કે 5 લાખ રૂપિયા આપ નકર તને મારી નાખીશ એવી બધી ધમકીઓ આપી મને તારી દુકાન બંધ કરાવી દઈશ એવી બધી ધમકીઓ આપી। મારા છોકરાને બૈરીને બી નોધારા કરી મૂક્યા। મારે આત્મહત્યા કરવાનું કારણ એ જ છે બસ નૈના અનુ ઝાલા મેન માસ્ટર माइंड तथा नैना भरत झाला तथा अनु झाला चारेयनी एवी सजा थवी जोईए के मारा मोतना जिम्मेदारी 4 ज छे। बस हूँ ई ज मागुं छूं वरासा पोलीस स्टेशन पासे न्याय मारी फरियाद थवी जोईए ने मारी दुकान ने वरासा पोलीस स्टेशन में ज आवेली छे अने 4 जिम्मेदार छे एने बराबरनी सजा थवी जोईए। नैना अनु झाला नैना भरत झाला तथा भरत झाला तथा अनु झाला 4 मारा मोतना जिम्मेदार छे। हूँ आत्महत्या करी रह्यो छुं। मारा बૈરી छोकराने हूँ नोधारा मूकी रह्यो छुं एनी वाहे आ मारी जिंदगी बर्बाद करी मूकी छे एनी। मारा हस्बेंड रेस्टोरंट चलावे छे अने एमने अहींया नौकरी करती एक भाई साथे भागी गया था। બે બેન 5 દિવસ પછી આવી ગયા પણ એમની જેઠાણી એમને ફોન કરીને બ્લેકમેલ કરતી હતી કે મને 5 લાખ રૂપિયા નહીં આપે ને તો તને અમે મારી નાખશું નકર અમે તારી દુકાને આવીને તોડફોડ કરશું। એ બીકના કારણે આ ભાઈ પાછા ઘરે આવ્યા નથી અને મેં પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ કરી તો મને એમ કે આ બાબતે કોઈ ફરિયાદ નહીં હોય એમને મારી એફઆઈઆર નહીં લખી અને એમ કહે છે કે કામરેજ જાઓ અને કામરેજ જાઉં તો મને પાછા વરાછા મોકલાય એમ કરીને મારી કોઈએ ફરિયાદ નથી લખી અને મારા 2 દિવસ પહેલાં એમણે મારા જીજાજીને વિડીયો મોકલો છે કે હું સુસાઇડ કરું છું। હવે એમણે સુસાઇડનો વિડીયો અમે 100 નંબર ઉપર કોલ કર્યો 100 નંબર ઉપર પોલીસ આવી એમ કે તમે એમને સુસાઇડ કરતા જોયા છે તો અમે ના પાડી તો એમણે કીધું કે એ તો સુસાઇડ નહીં કર્યો એમ કરીને એ લોકો જતા રહ્યા અને અમે પણ પોલીસ સ્ટેશન નહીં ગયા। અમે લોકો અહીંયાય અમને કોઈ ફરિયાદ નહીં લખી કે મોબાઈલની લોકેશન ગોધરા બતાવે છે પણ ગોધરા અમારી હદમાં નથી આવતું। આજે સવારે મને કામરેજ પોલીસ સ્ટેશનેથી ફોન આવ્યો કે તમે અહીંયા ઉત્તરાયણથી ફોન આવ્યો છે અહીંયા તમે લાશ મળી છે તો તમે અહીંયા જાઓ એટલે અમે અહીંયા આવ્યા છે। મારી એ માંગ છે કે જે એના મોતના જિમ્મેદાર છે એમને સજા મળવી જ જોઈએ અને બધા જે પોલીસ અધિકારી છે ને એ લોકોએ પણ અમને આમથી આમ ધક્કા ખવડાવ્યા છે એ લોકોના પ્રતિ બી કોઈ કાર્યવાહી થવી જરૂરી છે અત્યારે। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात।
ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। गुजरात के वडोदरा में संगीत नाटक अकादमी और संगीत संस्था स्वर विलास द्वारा एक विशेष संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वडोदरा में उस्ताद फयाज खान की जन्म जयंती के उपलक्ष्य संगीत नाटक अकादमी और संगीत संस्था स्वर विलास द्वारा शास्त्रीय संगीत समारोह का आयोजन CC मेहता ऑडिटोरियम में किया गया। इस संगीत समारोह में ऋषभ शिमाली ने राग मधुवंती, शशांक मक्तेदार ने नट बिहाग से उस्ताद फयाज खान को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर प्रसिद्ध गायक ऋषभ शिमाली ने राग मधुवंती प्रस्तुत किया, जिससे लोग मंत्रमुग्ध हो गए। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से शशांक मक्तेदार द्वारा नाट्य भागों का प्रभावशाली मंचन किया गया, जिससे दर्शकों को कला और संस्कृति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हुआ। यह आयोजन दिवंगत संगीत कलाकारों और रंगकर्मियों की स्मृति में रखा गया था, जिसमें शहर के कई प्रतिष्ठित संगीतकारों और कलाकारों ने भाग लिया।
गुजरात के वडोदरा में कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए GSP कॉर्प साइंस लिमिटेड का क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। वडोदरा के समाज क्षेत्र में आयोजित की गई एक खास क्रिकेट टूर्नामेंट जिसमें कॉर्पोरेट कर्मचारियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखा गया। GSP कॉर्प साइंस लिमिटेड के तत्वाधान में GSP बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट लीग का आयोजन किया गया, जहां शहर की 32 कंपनियों की टीमें इस लीग में भाग ले रही हैं। शुक्रवार से शुरू हुई ये लीग रविवार को समाप्त होगी, जिसमें विजेता टीम को ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। खास बात यह है कि GSP इस साल अपने 40वें स्थापना वर्ष का जश्न मना रहा है, जिसके तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। GSP કોન્ફરન્સના 40મા ફાઉન્ડેશન દિવસના ઉપલક્ષ્યમાં વડોદરા જિલ્લાના તમામ કોર્પોરેટના સદસ્યોને રાખીને ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ બોક્સ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ કોર્પોરેટ્સ માટે રાખવામાં આવી છે, જે ઉદ્દેશ્ય અમારા સંસ્થાપક રઘુવંતલાલ શાહનું હતું કે કોર્પોરેટમાં કામ કરતા તમામ લોકો માનસિક રીતે અથવા શારીરિક રીતે સ્વસ્થ હોવા જોઈએ અને એ આ જ સંદેશને અમે તમામ કોર્પોરેટમાં પહોંચાડવા માટે દર વર્ષે આ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરી રહ્યા છીએ અને ભવિષ્યમાં પણ આવી ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરતા રહીશું।